व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इसमें जो पेंसिल का मैकेनिज्म है, इमिपेनियम और सिफेलोस्पोरिन, इन सब में सेम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। होल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैविंग बीटा लैक्टम रिंग, and this ring bind with those enzymes which are involved with the transpeptidation, and when they bind with the transpeptidase and the transpeptidase do not work, so transpeptidases are penicillin binding proteins, and transpeptidases are inhibited, so the peptide side chains are not close linked with each other. And penicillin also bind with the autolysin inhibitors, and the autolysin proteins are present on the cell membrane of bacteria, and the function of the autolysin proteins are they break down the backbone and help the bacterial cell wall to remove the old molecule and add new molecules, and the activity of the autolysin proteins are controlled by autolysin inhibitor. And penicillin also bind with the autolysin inhibitor and inhibit them. So it means the autolysin inhibitor are inhibited and autolysin is more activate, so autolysin working so much and they keep on breaking the multiple area of cell, so the cell become very weak, so the bacteria die. तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जो भी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, जैसे कि इंक्लूडिंग ट्रांसपेप्टाइडेज, ऑटोलाइसिन इनहिबिटर, उनके साथ प्रोटीन बाइंडिंग जो प्रोटीन है उनके साथ पेनिसिलिन मॉलिक्यूल इंटैक्ट फैशन में बाइंड होगा, and the penicillin binding protein are present on the cytoplasmic membrane, on the surface of the cytoplasmic membrane. So, and step second, penicillin should reach with intact beta lactam ring, because if bacteria is creating beta lactamase, this is beta lactamase enzyme and this is beta lactamase enzyme, and beta lactamase is destroy the beta lactam ring, so beta lactam antibiotics does not work. This is gram positive bacteria and this is gram negative bacteria. And in gram positive bacteria, lot of peptidoglycans, and this is penicillin binding proteins, and it's create beta lactamases. And in gram negative bacteria, the space between the lipid membrane and the cytoplasmic membrane is called periplasmic space, and in periplasmic space the beta lactamase enzyme are concentrated. And in gram negative bacteria, this is very little peptidoglycan, and in gram positive bacteria lot of peptidoglycans. हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसमें इंक्लूड है हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेजेस आर प्रेजेंट, एंड ऑटोलाइसिन इनहिबिटर एंड अदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन आर प्रेजेंट. एंड इफ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज सीक्रेट करेगा, और बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है वो ब्रेकडाउन कर देगा बीटा लैक्टम ऑफ पेनिसिलिन, तो हम इसको बोलेंगे बीटा लैक्टामेजेज पेनिसिलिनेज, beta lactamase type. So first type is penicillinase, they break down the penicillins, and second type is cephalosporinases, they break down cephalosporins, and the main type is extended spectrum beta lactamases. Why they are expanded spectrum beta lactamases? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बीटा लैक्टामेजेज है और ये ब्रेकडाउन कर सकते हैं पेनिसिलिन का भी और सेफेलोस्पोरिन का भी, दोनों का कर सकते हैं ब्रेकडाउन ये. और जैसे कि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारा, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने सीक्रेट किया बीटा लैक्टामेजेज,
और ये बीटा लैक्टेमेजेस बाहर चला जाएगा क्योंकि इसके पास पोरस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, और इसके द्वारा ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा और यहाँ पे आके डिफ्यूज़ हो जाएगा। और जब पेनिसिलिन मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के पास आएगा तो ये बीटा लैक्टेमेज जो मॉलिक्यूल है इस पर अटैक कर देगा। बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है ये पेनिसिलिन पे अटैक करेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये प्रोड्यूस करता है बीटा लैक्टेमेजेस, लेकिन इसके जो बीटा लैक्टेमेज ये प्रोड्यूस करता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं आते, क्योंकि ये इसके बाहर लिपिड मेम्ब्रेन लेयर है और ये लिपिड मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करती कि यहाँ से बाहर चले जाए। तो ये बीटा लैक्टेमेज जो है ये यहीं पे कंसंट्रेट होते रहते हैं इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द लिपिड मेम्ब्रेन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करेगा बीटा लैक्टेमेजेस इन वेरी हाई कंसंट्रेशन अराउंड द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इस स्पेस में ये हाई कंसंट्रेशन में बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस कर देगा। एंड the beta lactamases not destroy the penicillin molecule when it is still far away from the gram negative bacteria। और जब पेनिसिलिन मॉलिक्यूल इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आएगा इसके पोरेंट्स के द्वारा, और इसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में इसकी बीटा लैक्टेमेज की हाई कंसंट्रेशन है, तो ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है ये हाईली रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें बीटा लैक्टेमेज जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा आते ही। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है मोर एक्टिव है जब मोर एक्टिव ऑन एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग बैक्टीरिया, क्योंकि इस समय जो बैक्टीरिया है वो नए सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा, और इस टाइम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उनके लिए इजी वे है कि डिस्ट्रॉय कर दे बैक्टीरिया को। और जब बैक्टीरिया के पास फुली मेच्योर और स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती ज़्यादा। एंड व्हेन बैक्टीरिया आर एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग इट मीन्स, मतलब जब बैक्टीरिया है वो नए सेल की फॉर्मेशन कर रहा है, नए सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहा है, और इस टाइम अगर हम पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन एंड और जो न्यू बॉर्न बैक्टीरिया है वो ट्राई कर रहा है नए सेल वॉल बनाने की, और इन दिस प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स न्यू सेल वॉल कैन नॉट बी मेड एंड द बैक्टीरिया विल डाई। और इसी टाइम अगर हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दे देंगे तो जो बैक्टीरिया वो नए सेल वॉल नहीं बना पाएगा, तो बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। एंड व्हेन बैक्टीरिया हैव फुली मेच्योर और स्ट्रॉन्ग सेल वॉल मीन्स व्हेन बैक्टीरिया नॉट प्रोलिफरेटिंग एट ऑल, इट मीन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बॉडी बट नॉट मल्टीप्लाइंग और नॉट प्रोलिफरेटिंग और नॉट मेकिंग न्यू सेल्स or new cell wall, then or the bacteria is happy with their old cell wall, then if we give cephalosporin or other beta lactam antibiotics, bacteria already have cell wall strong and fully mature, and beta lactam antibiotic not damage it more। तो इस कारण से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो मोर एक्टिव है कब, जब बैक्टीरिया एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग होगा तब। सो इट मीन्स द सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स आर मोर इफेक्टिव। जो हमारे सेल वॉल एक्टिव एजेंट हैं वो मोर इफेक्टिव होंगे तब जब जो हमारा बैक्टीरिया है वो एक्टिवली डिवाइड होता रहेगा, तो हमारी जो सेल वॉल एक्टिव एजेंट है वो उस पर मोर इफेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। और अगर हम किसी बैक्टीरिया को सेफेलोस्पोरिन या पेनिसिलिन देंगे और वो बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन नहीं कर रहा है, तो हमारी जो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन है वो एबल नहीं होगी कि उस बैक्टीरिया को मार सके। और व्हेन द बैक्टीरिया
आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई, और जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और नए सेल वॉल बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी के साथ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन हो रही है बैक्टीरिया में और ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन हो रही है, और अगर हम इन रिएक्शन को ब्लॉक कर देंगे तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो वीक हो जाएगी और बैक्टीरिया विल डाई, एंड वी कॉल इट बैक्टीरियोसाइडल ड्रग बिकॉज दे किल बैक्टीरिया, पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन्स। तो रेजिस्टेंस हमारे पास है नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। पहले बात करते हैं नेचुरल के बारे में। तो कुछ माइक्रोब ऐसे हैं जो नेचुरल रेजिस्टेंस होते हैं टू द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, क्योंकि उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। और हमारे पास एक एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है माइकोलिक एसिड से। सो द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आर नेचुरल रेजिस्टेंस। और माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री है उसकी भी माइकोलिक एसिड से बनी हुई सेल वॉल। और कुछ माइक्रोब होते हैं जो विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, और सेल्स विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल दे आर नेचुरल रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन्स। और एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, इसके पास सेल वॉल ही नहीं होती। और ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल भी डैमेज नहीं होती पेनिसिलिन से, क्योंकि ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं होती, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। तो हम बात करते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की। बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट करता है प्रोड्यूसिंग एंजाइम, और वो ब्रेक डाउन करता है बीटा लैक्टम जो हमारी रिंग है उसका, और जो ये एंजाइम है वो है बीटा लैक्टामेज और पेनिसिलिनेज। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके बारे में बात करेंगे अभी। मैंने डायग्राम नहीं बनाया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, मैंने ये प्रीवियस जो हमारे डायग्राम थे उसी में बस इसको समझा रहा हूँ। जो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जब बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो दे सीक्रेट बीटा लैक्टामेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो बीटा लैक्टामेज यहाँ से सीक्रेट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, और बीटा लैक्टामेज और पेनिसिलिन जो है वो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फैल जाएगा अराउंड दी बैक्टीरिया, मतलब स्प्रेड अराउंड दी बैक्टीरिया। और हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सीक्रेट करेगा बीटा लैक्टामेज को, और इसको कंसंट्रेट भी करेगा बीटा लैक्टामेज को, पेनिसिलिनेज को इन देयर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये जो है ये स्पेस जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये लिपिड मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसमें इसको कंसंट्रेट करेगा। ये बीटा लैक्टामेज, ये बीटा लैक्टामेज, ये बीटा लैक्टामेज, और पेनिसिलिनेज भी होगा इसमें। तो जब एंटीबायोटिक यहाँ पहुँच जाएगा तो ये एंटीबायोटिक बाहर नहीं जा पाएगा इससे, और ये जो बिग ग्रुप है बीटा लैक्टामेज का, ये एंटीबायोटिक्स को अपने पकड़ लेगा यहाँ पे और इनसाइड दी पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और डिस्ट्रॉय दी पेनिसिलिन। और इसी में अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में। जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो उनके पॉइंट होते हैं उनको अल्टर कर लेते हैं, मतलब जो पॉइंट का जो साइज है उसमें चेंज ला देते हैं, या फिर पॉइंट को टाइट कर लेंगे। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंट्री ऑफ पेनिसिलिन्स, टाइट कर लेंगे पॉइंट को, एंड रिड्यूसिंग द एंट्री ऑफ पेनिसिलिन, रिड्यूस कर देंगे एंट्री की, पेनिसिलिन की एंट्री को रिड्यूस कर देंगे वो, और ये डिक्रीज कर देगा परमिएबिलिटी पेनिसिलिन की और सेफलोस्पोरिन की, क्योंकि जो पोरिन है वो टाइट हो गए हैं और नैरो हो गए हैं। और अगर इस टाइम हम अगर कोई भी एंटी पेनिसिलिन ड्रग देंगे, उसी के साथ अगर हम क्लेवुलिक एसिड दें, क्लेवुलिक एसिड क्या करता है, ये किल करता है बीटा लैक्टामेज को, पेनिसिलिनेज को, तो ये ड्रग भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे ये ड्रग एंटर ही नहीं करेगी बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि जो पोरिन है वो टाइट है। सो दिस ड्रग डज नॉट वर्क ऑल्सो। हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे अल्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। हमने पहले भी बात की थी एक वीडियो में, मिथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरिस, इसी की हमने यहाँ पे बात की थी, अल्ट्रेशन ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन और बाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बीटा लैक्टम जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं,
इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, अल्ट्रेशन आ जाती है इसमें, तो इस पे ट्रांसपेप्टाइडेज और जो बीटा लैक्टम रिंग है वो इस पे फिट नहीं आती, बीटा लैक्टम रिंग कैन नॉट फिट ऑन इट। तो जो मेथिओनिन जो ड्रग है वो इस पे काम नहीं करेगी और ट्रांसपेप्टाइडेशन जो रिएक्शन है वो इनहिबिट नहीं होगी। तो हम इस पे वैनकोमाइसिन ड्रग यूज करते हैं एंड इट्स वेरी इफेक्टिव ऑन MRSA, मेथिओनिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरिस। इस पे वैनकोमाइसिन ड्रग यूज की जाती है। तो हमने अभी बात की थी इसी पे। तो मेथिओनिन जो रेजिस्टेंस है स्टेफिलोकोकस ऑरिस, तो इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग है वो इस पे फिट नहीं होगी, तो ट्रांसपेप्टाइडेशन जो रिएक्शन है वो इनहिबिट नहीं होगी। तो हम इसमें वैनकोमाइसिन ड्रग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग है ये न्यू नाम NAM और NAG और पेप्टाइड जो यूनिट है इनको बाइंड नहीं होने देंगी ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन के साथ। ये बाइंडिंग प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसमें अल्ट्रेशन आ गया है, पहले ऐसे था और अभी इसमें चेंज आ गया ये वाला। तो यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग फिट नहीं होगी।